Hello and welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. Today we're going to talk about a very important topic, that is group discussion, which is a part of your GTO series. In this video we will be covering the conduct of the group discussion. Also we are going to see few of the important do's and don'ts in group discussion so that you will be able to perform better in your group discussion. So let us see the conduct of the GD first. जो आपके GTO होंगे, he is going to conduct 2 GDs for you and हर GD आपका जो होगा वो 15 मिनट्स का होगा. दोनों GDs के बीच में जो टाइम गैप होगा वो बहुत ही कम होगा. आपको फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन के लिए ही विल बी गिविंग यू 2 टॉपिक्स टू चूज फ्रॉम. ही विल अनाउंस 2 टॉपिक्स एंड ही विल आस्क यू दैट एज ए ग्रुप यू हैव टू डिसाइड कि आपने कौन से टॉपिक पे डिस्कशन करना है. ही विल गिव यू अराउंड 1 मिनट टू डिस्कस कि आपने किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है. देन यू हैव टू टेल योर टॉपिक to the GTO and he will re-announce the topic for better clarity and then the discussion will start. So while you are choosing the topic, the candidates must decide the topic based on the relevance, but please remember that do not get into unnecessary arguments. आप argument मत करिए, यहाँ पे adamant मत हो जाइए कि यही topic पे discussion करना है. Just go with the flow. Majority जो भी decide कर रहे हैं आप उसके ऊपर discussion करने के लिए please ready हो जाइए. And जो आपका second topic होगा that will be chosen by GTO himself and he will announce the topic. नाउ जो आपको टॉपिक दिया जाएगा डिस्कशन के लिए वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होगा. आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाएगा टॉपिक का जीटीओ के द्वारा एंड ही विल बी गिविंग यू सर्टेन लीड्स टू डिस्कस ऑन. और जो नॉर्मली जो लीड आपको दिए जाएंगे दोज विल बी इन द क्वेश्चन फॉर्मेट. लेट अस सी एन एग्जांपल. सो हियर इज एन एग्जांपल from the current event that are going on and you can expect a similar group discussion topic for your upcoming SSBs. So India is a very large country with vast population and has been facing shortage of officers for last 2 decades. Despite India having a large army, it is facing shortage of officers ever since. In view of the above, should India go in for? First lead that is given is to induct young boys and girls under tour of duty for a span of 3 years. Second lead, should we make short service commission SSC more lucrative to attract good talent? Third lead, or should we follow the US pattern of compulsory military service? Or in your opinion, is there any other method that you would recommend to meet this shortage of officers in armed forces? Candidates, please remember you have been given 3 leads and all the options that have been given to you can be workable. In your opinion, which lead do you support the most? आप उस पे पॉइंट दे सकते हैं. Later in the GD आप फ्री हैं, आप किसी भी लीड को बाद में भी सपोर्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट ए डिबेट, इट्स ए ग्रुप डिस्कशन. तो लास्ट में आपको एनी अदर का ऑप्शन भी दिया गया है. इसका मतलब ये है कि यू डिड नॉट बी स्टक विद द ऑप्शन दैट हैव बीन गिवन टू यू बाय द जीटीओ. ऐसा भी हो सकता है कि कोई और रीज़न भी हो सकता है, कोई और सोल्यूशन भी आपके दिमाग में हो सकता है जिससे हम ये जो शॉर्टेज है ऑफिसर्स की उसको मीट कर सकते हैं. सी फ्यू डूज एंड डोंट्स फॉर द ग्रुप डिस्कशन सो दैट ये पर्टिकुलर डिस्कशन आपके लिए क्लियर करना और ईजी हो जाए. अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी फ्यू डूज एंड डोंट्स इन ग्रुप डिस्कशन सो दैट आपके लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट और इजी हो जाए. फर्स्ट वन, join the group discussion, give your views as early as possible. Yes, आप ट्राई करिए कि आप ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करें. हाउएवर प्लीज़ रिमेंबर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही ने इनिशिएट करना है. आपने यहाँ पे ट्राई ये करना है कि यू शुड बी अमंग्स द फर्स्ट 3 और 4 स्पीकर्स बिकॉज दैट विल शो योर इनिशिएशन क्वालिटी कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है. एंड ए गुड लीडर इज़ वन हु टेक्स इनिशिएटिव्स. ओके, यू आर इनिशिएटिंग द ग्रुप डिस्कशन, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप वो चीज़ें नहीं रिपीट कर रहे हैं जो जीटीओ ने बोली हैं. प्लीज़ पुट योर ओन ओपिनियन. आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपको लीड्स दी गई हैं उनमें से किसी एक लीड को चूज करके अपना रीज़न दे सकते हैं कि वाई डू यू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर लीड. इन द ग्रुप डिस्कशंस आपने ये याद रखना है कि
आपको किसी ने लीडर बनाया नहीं है. You have to assume that you are the leader of the group. GTO is not going to tell you that you are the leader. You have to assume the responsibility and then act accordingly. इसीलिए इनिशिएट करना, शुरू में ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड पॉइंट इज make your own original points and support them with substantial reasoning. आपने ट्राई करना है कि आप अपने व्यूज़ एटलीस्ट 5 से 6 बार एक्सप्रेस कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में. सो देव द ग्रुप डिस्कशन इज ऑफ 15 minutes एंड टू बी एबल टू गिव 6 to 7 वैलिड पॉइंट्स आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So please remember, knowledge is power in group discussion. You have to read magazines, you will have to read newspapers, watch debates, make your own opinion, prepare well for group discussion. Otherwise, it is going to be very difficult for you. Second thing, agree to some, disagree to some. But please remember, जब भी आप agree कर रहे हैं या disagree भी कर रहे हैं तो आपने reason देना है that why do you agree with this person or why you don't agree with this particular person. Please remember, just saying I agree with you or I don't agree with you is not enough. You have to support your points with substantial reasoning. जब आप किसी से disagree करते हैं and अगर आप reason नहीं देंगे तो कोई उसको सुनेगा नहीं. On the other hand, if you give your reason by maybe supporting it with an example कि this is the reason I disagree with you, that would be counted as a valid point. Third point, do not repeat of whatever has been said earlier. आपने कोई भी पॉइंट्स रिपीट नहीं करने हैं. आप अगर पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं तो दैट वुड मीन यू हैव लैक ऑफ नॉलेज. एंड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, नॉलेज इज़ पावर इन ग्रुप डिस्कशन. आपके पास नॉलेज नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन जीडी. सेकेंड थिंग, अगर आप पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं इसका एक और मतलब ये है कि आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत ही पुअर हैं. आपने सुना ही नहीं कि कोई और पहले ही ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट दे चुका है. एंड द GTO इज़ गोइंग टू नोट डाउन एवरीथिंग. ही नोज़ किसने क्या बोला है. एंड अगर आपने नहीं सुना है दूसरे कैंडिडेट्स को तो देर आर चांसेस यू विल एंड अप रिपीटिंग द पॉइंट्स. एंड कभी कभी क्या होता है, दूसरे कैंडिडेट बोल भी देते हैं कि चेस्ट नंबर सो एंड सो दिस पॉइंट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रॉट आउट. एंड अगर ऐसा बोल दिया तो डेफिनेटली ये सुन के आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर नीचे जाएगा. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर एक्टिवली लिसनिंग टू अदर कैंडिडेट्स एज वेल व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग. फोर्थ पॉइंट, डोंट बी वर्बोज. आप जो भी पॉइंट्स दे रहे हैं वो टू द पॉइंट दीजिए. बातों को गोल गोल मत घुमाइए बिकॉज यू वोंट गेट मच टाइम. 15 ही मिनट हैं. आपको एक बार आप जब बोल रहे हैं तो हार्डली यू विल बी अलाउड टू स्पीक फॉर 30-40 सेकेंड. इससे पहले आपको कोई ना कोई इंटरप्ट ज़रूर कर देगा. सो बी लॉजिकल. इन ऑर्डर टू बी लॉजिकल आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अगेन द के वर्ड कम्स इन टू प्ले. नॉलेज इज़ पावर. आप तैयारी नहीं करके जाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं है, यू विल मिजरेबली फेल इन द ग्रुप डिस्कशन. थर्ड थिंग, प्लीज़ डू नॉट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. आपको जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसके आपके पास लीड्स गिवन हैं. आप पहले उन लीड्स के बारे में बात करिए. डू नॉट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. GTO ने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि वो क्या चाहते हैं कि आप किस चीज़ पे डिस्कशन करें. जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें द GTO वांट्स यू टू डिस्कस ऑन दी रिकमेंडेशन कि आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे कि आर्मी में जो ऑफिसर्स की जो शॉर्टेज है वो कम हो जाए. सो प्लीज़ स्टिक टू दैट एंड डोंट बी वर्बोस. थर्ड थिंग, इफ समवन एल्स इज गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो यू कैन ऑलवेज इंटरप्ट कि आप प्लीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जाइए. दिस इज द टॉपिक दैट हैज़ बीन गिवन और हमें इसी पे बात करनी है. देयर इज़ नो हार्म इन इंटरप्टिंग इफ समबडी इज गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. Point, please do not hit somebody or pick up a fight and abuse. Again, please remember that it is a group discussion. It is an informal discussion. आपको अगर किसी को कुछ पॉइंट बोलना भी है तो आप कभी भी उनको टच करके नहीं बोलेंगे. मोस्टली क्या होता है GD में, देयर इज़ ए टेंडेंसी कि आपको अगर
कोई बात सुन नहीं रहा है तो आप उसको हाथ से टच करके उसको बुलाने की कोशिश करते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. And never ever pick up a fight in group discussion because this is a informal discussion. यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है, आपने एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है. अगर आपको किसी की अटेंशन गेन करनी है, किसी को बुलाना है, तो आप उनको रिस्पेक्टफुली एड्रेस कीजिए. जेंटलमैन, आई हैव ए पॉइंट टू मेक. दे विल लिसन. अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो डू एड्रेस देम बाय देयर चेस्ट नंबर. आप चेस्ट नंबर से बोलेंगे तो दे विल ऑब्वियसली लिसन टू यू. पॉइंट, डू नॉट क्रिएट नॉइज. अब नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन में देर इज ए टेंडेंसी कि स्टार्टिंग में फिश मार्केट जैसी कंडीशन आ जाती है. एवरीबडी इज ट्राइंग टू स्पीक, क्योंकि सबके पास स्टार्टिंग में पॉइंट्स होते हैं. उस टाइम पे प्लीज डू नॉट स्पीक व्हेन 5-6 अदर पीपल आर स्पीकिंग, बिकॉज क्या होगा, आप भी उस नॉइज में एड ऑन करेंगे तो किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. सो ए स्मार्ट पर्सन वुड ऑलवेज स्टे क्वाइट. इसके बाद क्या होगा, देयर विल बी ए टाइम जब एक छोटा सा पॉज आएगा, जब सब लोग बोल के रुक जाएंगे आफ्टर मे बी 50 सेकेंड्स और 1 मिनट. वो जो छोटा सा पॉज आ रहा है 5 सेकेंड 10 सेकेंड का, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी. उस टाइम पे आपने अपने पॉइंट के साथ रेडी होना है कि मुझे क्या बोलना है. एंड जैसे ही वो पॉज आ रहा है यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अगेन. आप तभी अपने पॉइंट्स के साथ रेडी रह पाएंगे, आपके पास नॉलेज है. नॉलेज नहीं होगा तो अगेन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. पॉइंट, कनेक्ट टू अदर कैंडिडेट्स. तो आपने क्या करना है, जब भी आप पॉइंट्स दे रहे हो तो आप उससे पॉइंट दीजिए जो टॉपिक अभी डिस्कशन में चल रहा है. डोंट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. से फॉर एग्जांपल पहले लीड के बारे में बात चल रही है, 1-2 कैंडिडेट्स ने टूर ऑफ ड्यूटी पे अपने पॉइंट्स दिए हैं, तो अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप उस टाइम पे ऐड ऑन करिए. ठीक है, इससे क्या होगा, जिस टेस्ट नंबर में आप अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहे हैं एटलीस्ट ही विल लिसन टू यू एंड चांसेस वुड बी कि लेटर ऑन ही वुड ऑल्सो सपोर्ट टू यू. तो आपने जो डिस्कशन जो करना है वो एक फ्लो में होना चाहिए. ऐसे आर्बिट्रली कोई भी पॉइंट कभी भी आपने नहीं उठाना है. यू टू सी कि किस चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से आपने सुनना है एंड देन यू हैव टू कंट्रीब्यूट. सेकेंड थिंग, जब आप अपने पॉइंट्स दे रहे हैं तो आपने प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक कैंडिडेट को ही अपने पॉइंट एड्रेस करके बोल रहे हैं या फिर आप जीटीओ की तरफ देख रहे हैं. आपने पूरे ग्रुप को अपने पॉइंट्स देने हैं. इवन इफ यू आर आंसरिंग टू समबडी इन पर्टिकुलर, लाइक किसी टेस्ट नंबर ने कुछ बोला एंड आप उसी को आंसर करना चाहते हैं, इन दैट केस ऑल्सो 1 or 2 टाइम यू कैन लुक टुवर्ड्स हिम, बट अदरवाइज आपने दूसरे लोगों की तरफ देखना है. थर्ड थिंग, जब आप पॉइंट्स नहीं दे रहे हैं और दूसरे लोग पॉइंट्स दे रहे हैं तब आपने बहुत ही अटेंटिवली सुनना है, क्योंकि तभी आप अपने पॉइंट्स को कनेक्ट करके अपना अगला पॉइंट दे पाएंगे. अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाकी लोग क्या पॉइंट्स दे रहे हैं एंड आप जो पॉइंट देंगे वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे जा सकता है. 8, मेंटेन ए मॉडरेट टोन ऑफ वॉइस. इसका ये मतलब है आपने बहुत ज़ोर से भी नहीं चिल्लाना है और आपने बहुत धीरे भी नहीं बोलना है. ज़्यादा ज़ोर से बोलोगे तो ऐसा लगेगा ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, और अगर बहुत धीरे बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है. तो आपने एक मॉडरेट टोन ऑफ वॉइस मेंटेन करके रखना है. से फॉर एग्जाम्पल जब 2-3 लोग बोल रहे हैं और आपको बीच में अपना पॉइंट देना ही है, उस टाइम पे यू विल हैव टू रेज योर वॉइस. बट जब सब लोग शांत हो गए हैं उस टाइम पे ऑब्वियसली आप अपनी टोन को वापस मॉडरेट लेवल पे लेके आ सकते हैं. एंड व्हेन यू आर गिविंग योर पॉइंट्स तो बी अवेयर ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन. आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेयरफुल होने चाहिए, ना कि आपने किसी को इंटिमिडेट करने की कोशिश करनी है. ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट वॉट यू से, इट्स हाउ यू से इट. किस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को पुट अप कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग विद समवन. तो उस टाइम पे प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपका जो टोन है बोलने का वो एकदम मॉडरेट होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, प्लीज़ लुक चेयरफुल थ्रू आउट द ग्रुप डिस्कशन. आपने पूरे ग्रुप डिस्कशन में पूरे एंथुजियाज्म, पूरे एनर्जी एंड इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करना है. अगेन यू हैव टू अज्यूम दैट यू आर द लीडर, और अगर लीडर ही चेयरफुल नहीं होगा तो यू कैन इमेजिन अबाउट द टीम. तो आपको सबसे ज़्यादा चेयरफुल रहना है. देयर विल बी टाइम्स जब आपसे लोग शायद डिसएग्री करें किसी न किसी पॉइंट पे, उस टाइम पे भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है. पॉइंट नंबर 10,
बी कंसिडरेट विथ फीलिंग्स ऑफ अदर्स। आपने किसी भी पॉइंट पे किसी भी कैंडिडेट का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो पॉइंट किसी कैंडिडेट ने दिया है दिस इज़ वेरी फूलिश, बट आपने उस टाइम पे प्लीज़ किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। डोंट ट्राई टू पुल डाउन समबडी इंटेंशनली। जानबूझ के आप अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, अगेन इट्स नॉट ए वेरी गुड साइन, बिकॉज आई हैव मेंशन आपने अज्यूम करना है दैट यू आर द लीडर, ठीक है। एंड लीडर अगर दूसरे लोग को मजाक उड़ा रहा है तो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ ए लीडर ही इज। पॉइंट नंबर 11, कीप एन ओपन माइंड इन द ग्रुप डिस्कशन। इन जनरल ऑल्सो आपने अपना माइंड ओपन रखना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके ओपिनियन से बाकी लोग अग्री ना करें, एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है, आपके फ्रेंड का एक अलग ओपिनियन हो सकता है, देयर इज़ नो हार्म इन इट, एंड वही सारे ओपिनियंस को आप डिस्कस कर रहे हैं इस ग्रुप डिस्कशन में। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट एंग्री जब आपका पॉइंट से कोई डिसअग्री करता है। प्लीज़ लिसन टू देम केयरफुली, एंड इफ़ यू गेट कन्विंस्ड कि ओके वॉट एवर पॉइंट दे हैव गिवन इज़ वैलिड, तो आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि ओके फ्रेंड, आई अग्री विद यू नाउ। पॉइंट नंबर 12, मेंटेन ए गुड बॉडी पोस्चर इन द ग्रुप डिस्कशन। ऐसा कोई आपको चेयर दिया जाएगा जहाँ पे शायद आर्म रेस्ट नहीं होगा, तो यू कैन रेस्ट योर हैंड ऑन योर नीज, बट आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। वाइल यू आर मेकिंग योर पॉइंट तो आप अपने हैंड जेस्चर्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट आपने रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। पॉइंट नंबर 13, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने पूरे पॉइंट्स जो आप पुट कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पुट अप करने हैं। आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे तो आपको कोई ना कोई बीच में इंटरप्ट कर देगा, ठीक है। एंड टू बी एबल टू पुट योर पॉइंट्स कॉन्फिडेंटली आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक चीज़ बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि वर्बल कम्युनिकेशन, योर फ्लुएंसी, योर नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन। नंबर 13, don't be stubborn or rigid. Please remember that the candidate should be accommodative to ideas expressed by others. आपने दूसरों के आइडियाज़ जो हैं उनको भी अप्रिशिएट करना है। One should not be rigid about one's own ideas. आप असर्टिव हो सकते हैं बट ओनली अप टू ए पॉइंट। किसी भी आइडिया को लेके, किसी भी ओपिनियन को लेके आपने कोई स्टबर्ननेस वहाँ पे नहीं शो करनी है, आपने रिजिडिटी वहाँ पे नहीं शो करनी है, आपने अडेप्टेबिलिटी शो करनी है। बिकॉज ए गुड लीडर इज समवन हु इज़ वेरी अडेप्टेबल कि हाँ ठीक है, इट्स ओके इफ समबडी डजंट अग्री विथ योर पॉइंट्स, इट्स टोटली फाइन, राइट। दे कैन हैव देयर ओन पॉइंट्स, एंड प्लीज रिमेंबर दैट इट्स एन इनफॉर्मल डिस्कशन, इट्स नॉट ए डिबेट। तो आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लीड पे ही अपने पॉइंट एक्सप्रेस करने हैं, आप सारे लीड्स पे अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 14, डोंट एंगेज योर सेल्फ इन सब ग्रुप कॉन्वर्जेशन। अभी 10 लोगों का ग्रुप है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जेडी सिर्फ 3 लोगों के साथ कर रहे हैं। जब भी आप अपने पॉइंट्स पुट अप कर रहे हैं आपने पूरे ग्रुप को एड्रेस करना है। अब ये होता है कि अगर आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आप दूसरों को अच्छे से सुन रहे हैं जीडी में, तो क्या होगा, बाकी लोग भी आपको ध्यान से सुनेंगे जब आप अपने पॉइंट्स दे रहे हैं। सो इट इज़ लाइक ए गिव एंड टेक पॉलिसी इन ग्रुप डिस्कशन। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, नेवर एड्रेस द जीटीओ वाइल स्पीकिंग। जब भी आप अपने पॉइंट दे रहे हैं तो आपने जीटीओ को एड्रेस नहीं करना है, आपने ग्रुप को एड्रेस करना है। नाउ यू वुड बी थिंकिंग फिर जीटीओ को पता कैसे चलेगा कि मैंने पॉइंट्स दिए हैं। He is sitting just in front of you and he is noting down everything. तो आपने बिल्कुल इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि जीटीओ को पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है। योर ओनली जॉब इज़ टू गेन नॉलेज, इज़ टू बी कॉन्फिडेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए, एंड देन आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू गुड इन योर ग्रुप डिस्कशन। हाउएवर, आप जब भी आप अपने पॉइंट्स दे रहे हैं तो उससे पहले आप कुछ सेंटेंसेस अपने रेडी रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल यू कैन से, जेंटलमैन आई अग्री विथ योर ओपिनियन बट आई वांट टू say this. You can say this, or you can say gentlemen I slightly disagree with you, and then आगे आप अपना रीज़न दे सकते हैं कि why you disagree with that particular person. Just ये बोलना कि I disagree with you, this is not enough.
एंड अगर कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है तो आप हमेशा उसे पोलाइटली बोल सकते हैं कि जेंटलमैन लेट्स नॉट गो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम अभी इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे ही रहना है. एट द एंड प्लीज रिमेंबर दैट all the tests that will be conducted in SSB are going to be in English language. तो आपके लिए written English, spoken English में comfortable होना बहुत ही ज़रूरी है. आप कुछ words हिंदी में बोल सकते हैं but please switch back to English as soon as possible. तो अपने अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं how to actually prepare for GD. क्या हमारी राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे हमने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से करंट अफेयर्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एंड कितना डीप में हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहिए, क्या क्या वेरियस रिसोर्सेज हमें यूज़ करने चाहिए, वो हम सारी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो आई होप आपको ग्रुप डिस्कशन का पूरा कंडक्ट और डूज एंड डोंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ hit the subscribe button. Also do share the video with your friends. Thank you so much.